اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہے ہمارے زبان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا ہمارے چینل فرسٹ لرننگ پر خیر مقدم استقبال ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے خاکہ، جو کہ حالی کا خاکہ ہے اور جسے مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ چند ہم عصر مولوی عبدالحق کی کتاب ہے، جس میں 18 خاکے ہیں۔ جس میں کیا ہے 18 خاکے ہیں۔ یہ خاکے انہوں نے مختلف اوقات میں لکھے اور شائع کیے ہیں۔ یہ خاکے انہوں نے الگ الگ وقت میں لکھے ہیں اور شائع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ہونہار شاگرد شیخ چاند نے ان کو یکجا کیا، یعنی ایک جگہ جمع کیا اور چند ہم عصر کے نام سے کتابی شکل میں شائع کر دیا۔ ان خاکوں میں سب سے طویل خاکہ کس کا ہے؟ سر سید کا ہے۔ اور آج جو میں پڑھوں گی حالی کا بھی خاکہ کیا ہے، کافی لمبا ہے۔ جب سے میں نے اردو میں ایم اے کیا ہے تو ان سب کتابوں کے بارے میں بار بار پڑھا اور سنا ہے، تو مجھے بڑا شوق ہوا کہ ہم بھی اس کتاب کو پڑھیں، چند ہم عصر، جو مولوی عبدالحق کی ہے۔ تو جب میں پڑھ رہی تھی تو سوچا کہ آپ کو بھی یہ، کیونکہ جو لڑکے نیٹ اور جے آر ایف کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ خاکہ بہت مفید ہے، بہت فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے۔ غالباً 1892 یا 93 کا ذکر ہے، جب میں مدرسۃ العلوم مسلمان علی گڑھ میں طالب علم تھا۔ مولانا حالی اس زمانے میں یونین کے پاس کی بنگلیا میں مقیم تھے۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ یہ مولوی عبدالحق لکھ رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ جب 1892 یا 93 کا ذکر ہے، جب میں کیا ہے مدرسۃ العلوم مسلمان علی گڑھ میں طالب علم تھا۔ مولانا حالی اس زمانے میں یونین کے پاس کی بنگلیا میں مقیم تھے، یعنی رہتے تھے۔ میں اس سال تعطیلوں کے زمانے میں وطن نہیں گیا، یعنی چھٹی میں گھر نہیں گیا، بورڈنگ ہاؤس ہی میں رہا۔ اکثر مغرب کے بعد کچھ دیر کے لیے مولانا حالی کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ مولوی صاحب اس زمانے میں حیات جاوید کی تالیف میں مصروف تھے، کیونکہ حیات جاوید اور یادگار غالب کس نے لکھا ہے؟ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ تو مولوی صاحب اس زمانے میں حیات جاوید کی تالیف میں مصروف تھے اور ساتھ ہی ساتھ یادگار غالب کو بھی ترتیب دے رہے تھے۔ انہی دنوں میں میرے ایک عزیز میرے یہاں مہمان تھے۔ میں جو ایک دن مولانا کے یہاں جانے لگا تو وہ بھی میرے ساتھ ہو لیے۔ کچھ دیر مولانا سے بات چیت ہوتی رہی۔ لوٹتے وقت رستے میں عزیز مہمان فرمانے لگے کہ ملنے سے اور باتوں سے تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ وہی مولوی حالی ہیں جنہوں نے مسدس لکھا ہے۔ یہ مولانا کی فطری سادگی تھی جو اس خیال کا باعث ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا حالی نے مسدس حالی لکھا ہے، جسے کس نے لکھوایا تھا؟ سر سید لکھوایا تھا۔ سر سید نے مولانا الطاف حسین حالی کو کہا تھا کہ آپ مسدس حالی لکھیے۔ ایک دوسرا واقعہ جو میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا اور جس کا ذکر میں نے کسی دوسرے موقع پر کیا ہے، یہ 1905 کا ذکر ہے، جب غفران مآب اعلیٰ حضرت مرحوم کی حویلی بلدہ حیدرآباد اور تمام ریاست میں بڑے جوش اور شوق سے منائی جا رہی تھی۔ مولانا حالی بھی اس حویلی میں سرکار کی طرف سے مدعو کیے گئے تھے اور نظام قلب کے ایک حصے میں ٹھہرائے گئے تھے۔ زمانہ قیام میں اکثر لوگ صبح سے شام تک ان سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک صاحب جو علی گڑھ کالج کے گریجویٹ اور حیدرآباد میں ایک معزز عہدے پر فائز تھے، مولانا سے ملنے آئے۔ ٹم ٹم پر سوار تھے، زینے کے قریب اترنا چاہتے تھے۔ سائی کی جو شامت آئی تو اس نے گاڑی 2 قدم آگے جا کر کھڑی کی۔ یہ حضرت اسی ذرا سی چوک پر آپے سے باہر ہو گئے اور ساڑ کئی ہنٹر غریب کے رسید کر دیے۔ مولانا یہ نظارہ اوپر برآمدہ میں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کھٹ کھٹ کر کے سیڑھیوں پر سے چڑھ کر اوپر آئے، مولانا سے ملے، مزاج پرسی کی اور کچھ دیر باتیں کر کے رخصت ہو گئے۔ میں دیکھ رہا تھا مولانا کا چہرہ بالکل متغیر تھا۔ وہ برآمدے میں ٹہلتے جاتے تھے اور کہتے تھے، ہائے ظالم نے کیا کیا، اس روز کھانا بھی اچھی طرح نہ کھا سکے۔
खाने के बाद कैलोले की आदत थी, वो भी नसीब ना हुआ। फरमाते थे, ये मालूम होता है कि गोया वो हंटर किसी ने मेरी पीठ पर मारे हैं। इस कैफियत से जो कर्ब और दर्द मौलाना को था, वो शायद इस बदनसीब साईं को भी ना हुआ होगा। मौलाना की सीरत में ये दो मुमताज़ खसूसियतें थीं, एक सादगी और दूसरी दर्द दिली, और यही शान इनके कलाम में है। इनकी सीरत और इनका कलाम एक है, या यूं समझिए कि एक दूसरे का अक्स है। मुझे अपने ज़माने के नामूर असहाब और अपनी कौम के अक्सर बड़े शख्सियतों से मिलने का इत्तफाक हुआ है, लेकिन मौलाना हाली जैसा पाक सीरत और खसाइल का बुज़ुर्ग, खसाल यानी खसलत आदत का बुज़ुर्ग मुझे अभी तक कोई नहीं मिला। नवाब अमादुल मुल्क फरमाया करते थे कि सर सैयद की जमात में बहैसियत इंसान के मौलाना हाली का पाया बहुत बुलंद था। इस बात में सर सैयद भी इन्हें नहीं पहुंचते थे। जिन लोगों ने इन्हें देखा है या जो उनसे मिले हैं, वो ज़रूर इन कौल की तस्दीक करेंगे। खाकसारी और फरुतनी खलकी थी। इस कदर बड़े होने पर भी छोटे बड़े सबसे झुककर और खुलूस से मिलते थे। जो कोई उनसे मिलने आता खुश होकर जाता और फिर उम्र भर इनके हुस्न अखलाक का मद्दाह रहता यानी उनकी तारीफ करता रहता। उनका रुतबा बड़ा था, मगर उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा ना समझा। बड़ों का अदब और छोटों पर शफकत तो वो करते ही थे, लेकिन बाज़ औक़ात वो अपने छोटों का भी अदब करते थे। तालिब इल्मी के ज़माने में एक बार जब वो अलीगढ़ में मुकीम थे, मैं और मौलवी हमीदुद्दीन मरहूम इनसे मिलने गए, तो वो सरोक़त ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। हम अपने दिल में बहुत शर्मिंदा हुए। मौलवी हमीदुद्दीन ने कहा भी कि आप हमें ताज़ीम देकर महजूब करते हैं। फरमाने लगे कि आप लोगों की ताज़ीम ना करूं तो किसकी करूं? आइंदा आप ही तो कौम के नाखुदा होने वाले हैं। इससे बढ़कर खाकसारी का सबूत क्या होगा कि उन्होंने अपनी किताबों पर जो असली मानों में तसनीफ होती थी, हमेशा मर्तबा लिखा, कभी मुअल्लिफ या मुसन्निफ का लफ्ज़ नहीं लिखा। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मशहूर सफ़ीर मौलवी अनवार अहमद मरहूम कहते थे कि एक बार वो पानीपत गए। जाड़ों का ज़माना था, अंधेरा हो चुका था। स्टेशन से सीधे मौलाना के मकान पर पहुँचे। दालान के पर्दे पड़े हुए थे। उन्होंने पर्दा उठाया और झांक कर देखा। मौलवी साहब फर्श पर बैठे थे और सामने आग की अंगीठी रखी थी। उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उठकर मिले और अपने पास बैठा लिया। मिजाज पुरसी के बाद कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं। इसके बाद खाना मंगवाया। अनवार अहमद मरहूम खाने के बहुत शौकीन थे। पानीपत की मलाई बहुत मशहूर थी। उनके लिए मलाई मंगवाई। खाना खाने के बाद कुछ वक्त बातचीत में गुजरा। फिर इनके लिए पलंग बिछवाकर बिस्तरा करा दिया और ख़ुद आराम करने के लिए अंदर चले गए। ये भी थके हुए थे, पढ़कर सो रहे। मौलवी अनवार अहमद कहते थे कि रात के 12-1 बजे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई शख्स इनकी रज़ाई को आहिस्ता आहिस्ता छू रहा है। उन्होंने चौंक कर पूछा, कौन? मौलवी साहब ने कहा, मैं हूँ। आज सर्दी ज़्यादा है, मुझे ख्याल हुआ कि शायद आपके पास ओढ़ने का सामान ना हो, तो ये कंबल लाया था और आपको उड़ा रहा था। अनवार अहमद साहब कहते थे कि मुझ पर इनकी इस शफ़क़त का ऐसा असर हुआ कि उम्र भर नहीं भूल सकता। मेहमान के आने से और अक्सर ऐसा होता था। वो बहुत खुश होते थे और सच्चे दिल से खातिर तवाज़ा करते थे और इसके खुश रखने की कोशिश करते थे। मौलाना बहुत ही रक़ीक़ुल क़ल्ब थे। दूसरे की तकलीफ़ को देखकर बेचैन हो जाते थे और जहाँ तक इख्तियार में होता इसके रफ़ा करने की कोशिश करते। हाजतमंदों की हाजत रवा करने में बड़ी फ़राख़ दिली से काम लेते थे। बावजूद ये इनकी आमदनी कलील थी, लेकिन यानी बहुत कम थी, लेकिन अपने पुराने खुसूसन मुसीबत ज़दा लोगों के साथ सलूक करते रहते थे। सिफारिशें करके लोगों के
काम निकालते थे। इसमें बड़े छोटे की कोई तखसीस ना थी। बामुरवत ऐसे थे कि इनकार नहीं कर सकते थे। इस कलील आमदनी पर भी हाजतमंद इनके यहाँ से महरूम नहीं जाते थे। तो दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपसे एक गुजारिश ये भी करूँगी कि आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ले। ज्वाइन बटन सिर्फ 75 रुपीज़ का है। तो अगर आप ज्वाइन बटन लेंगे तो आपको क्या होगा कि जो भी नोट्स का PDF चाहेंगे मैं आपको उस नोट्स का PDF ज़रूर दूंगी। तासुब इनमें नाम को ना था। हर कौम व मिल्लत के आदमी से यकसा खुलूस और मोहब्बत से पेश आते थे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े हामी थे। जब कभी हिंदू मुस्लिम निज़ा का कोई वाक़या सुनते थे इन्हें बहुत रंजो अफसोस होता था। तहरीर व तकरीर में तो क्या, निज की और बेतकल्लुफ़ी की गुफ्तगू में भी इनके ज़बान से भी कोई कलमा ऐसा सुनने में नहीं आया जो किसी फ़र्क़े की दिल आज़ारी का बास हो, बल्कि अगर कोई ऐसी बात कहता तो बुरा मानते और नसीहत करते थे। बेतासुबी का वस्फ उन्हीं लोगों में पाया जाता है जिनकी तबीयत में इंसाफ होता है। हिंदी उर्दू का झगड़ा इनके ज़माने में पैदा हो चुका था और इसने नागवार सूरत इख्तियार कर ली थी, लेकिन बावजूद इसके कि उन्होंने उम्र भर उर्दू की खिदमत की और अपनी तहरीरों से उर्दू का दर्जा बहुत बुलंद कर दिया, वो इंसाफ की बात कहने से कभी ना चूके। चुनांचा खमखाना जावेद के तबसरे में लिखते हैं, आजकल अहले मुल्क की बदकिस्मती है जो इख्तलाफ हिंदू और मुसलमानों में उर्दू ज़बान की मुखालफत या इसकी हिमायत की वजह से बरपा है, इसकी रफादाद हो सकती है तो इस तरीक़े से हो सकती है कि हिंदू तालीम याफ्ता असहाब कुशादा दिली और फयाजी के साथ उर्दू ज़बान में जो दर हकीकत ब्रिज भाषा की एक तरक्की याफ्ता सूरत और इसकी एक परवान चढ़ी हुई औलाद है, इस तरह तसनीफ़ व तालीफ़ करें जिस तरह हमारे हर दिल अजीज़ हीरो ने इस तुलानी तस्करे को ख़त्म करने का इरादा किया है। और मुसलमान मुसन्निफ़ीन बेज़रूरत उर्दू में अरबी फ़ारसी के गैर मानूस अल्फाज इस्तेमाल करने से जहाँ तक हो सके परहेज़ करें और इनकी जगह ब्रिज भाषा के मानूस और आम फहम अल्फाज से उर्दू को माला माल करने की कोशिश करें और इस तरह दोनों कौमों में आशिती और सुलह की बुनियाद डालें और एक मुतनाज़ा ये ज़बान को मकबूला फ़रीक़ीन बनाएं, जैसे कि लखनऊ जाने से पहले तकरीबन अहले दिल्ली की ज़बान थी। मज़कूरा बाला इख्तलाफ के मुतालिक जो तासुब और नागवारी का इल्ज़ाम हिंदुओं पर लगाया जाता है, इस किस्म का बल्कि इससे ज़्यादा सख्त इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया जा सकता है। कौन नहीं जानता कि मुसलमान बावजूद ये कि तकरीबन 1000 बरस से हिंदुस्तान में आबाद हैं, मगर इस तवील मुद्दत में उन्होंने चंद मुतशिनात को छोड़कर कभी संस्कृत या ब्रिज भाषा की तरफ बावजूद सख्त ज़रूरत के आंख उठाकर नहीं देखा। जिस संस्कृत को यूरोप के मुहक्किक लातीनी व यूनानी से ज़्यादा फसीह, ज़्यादा वसी और ज़्यादा बाकायदा बताते हैं और जिसकी तहकीकात में उम्रे बसर कर देते हैं, मुसलमानों ने आम तौर पर कभी इसको काबिल अल्ताफ नहीं समझा। अगर ये कहा जाए कि संस्कृत का सीखना कोई आसान काम नहीं है तो ब्रिज भाषा जो बमुकाबला संस्कृत के नहायत सहल व वसूल है और जिसकी शायरी नहायत लतीफ़ व शगुफ्ता और फसाहत व बलागत से लबरेज है, इसको भी अमूमन बेगाना वार नज़रों से देखते रहिए। हालांकि जो उर्दू इनको इस कदर अजीज़ है, इसके ग्रामर का दारोमदार बिल्कुल ब्रिज भाषा या संस्कृत के ग्रामर पर है। अरबी फ़ारसी से इसको इस कदर ताल्लुक़ है कि दोनों ज़बानों के इस्मा इसमें कसरत के साथ शामिल हो गए हैं। बाकी तमाम इज्ज़ाए कलाम जिसके बगैर किसी ज़बान की नज़्म व नसर मुफीद माना नहीं हो सकती, ब्रिज भाषा या संस्कृत की ग्रामर से माखूज़ हैं।
सच ये है कि मुसलमानों का हिंदुस्तान में रहना और संस्कृत या कम से कम ब्रिज भाषा से बेपरवाह या मुतनफ़िर होना बिल्कुल अपने तई इस मिसल का मसादाक बनाना है कि दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर। ये बाज़ लोगों को बहुत नागवार गुजरी और बाज़ उर्दू अखबारों ने इसकी तरदीद भी छापी, लेकिन जो सच्ची बात थी वो कह गुजरे। इस ख्याल का इजहार उन्होंने कई जगह किया है कि जो शख्स उर्दू का अदीब और मुहक्किक होना चाहता है उसे संस्कृत या कम से कम हिंदी भाषा का जानना ज़रूरी है। मुकदमा शेर व शायरी में एक मुकाम पर फरमाते हैं, उर्दू पर कुदरत हासिल करने के लिए सिर्फ दिल्ली या लखनऊ की ज़बान का ततबा ही काफ़ी नहीं, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि अरबी फ़ारसी से कम मुतवसत दर्जे की लियाकत और नीज़ हिंदी भाषा में फिल जुमला दस्तगाह बहम पहुँचाई जाए। उर्दू ज़बान की बुनियाद जैसा कि मालूम है हिंदी भाषा पर रखी गई है। इसके तमाम इफ़ाल और तमाम हुरूफ और गालिब हिस्सा इसमा का हिंदी से माखूज है और उर्दू शायरी की बिना फ़ारसी शायरी पर जो अरबी शायरी से मुस्तफ़ाद है कायम हुई है। नीज़ उर्दू ज़बान में बड़ा हिस्सा इसमा का अरबी और फ़ारसी से माखूज है। बस उर्दू ज़बान का शायरी जो हिंदी भाषा को मुतल्लिक़ नहीं जानता और महज अरबी फ़ारसी के तान गाड़ी चलाता है, वो गोया अपनी गाड़ी बगैर पहियों के मंजिल मकसूद तक पहुंचानी चाहता है। और जो अरबी व फ़ारसी से नाबल्द हैं और सिर्फ हिंदी भाषा या महज मादरी ज़बान के भरोसा पर इस बोझ का मुतहम्मल होता है, वो ऐसी गाड़ी ठेलता है जिसमें बैल नहीं जोते गए। एक बार जब उर्दू लुग़त की तरतीब का जिक्र उनसे आया तो फरमाने लगे, उर्दू लुग़त में हिंदी के वो अल्फाज जो आम बोलचाल में आते हैं या जो हमारी ज़बान में खप सकते हैं बला तकल्लुफ़ कसरत से दाखिल करने चाहिए। खुद अपने नज़म व नसर में वो हिंदी अल्फाज ऐसी खूबसूरती से लिख जाते थे कि ये मालूम होता था कि वो गोया इस मौके के लिए वज़ा हुए थे। उन्होंने बहुत से ऐसे अल्फाज उर्दू अदब में दाखिल किए जो हमारी नज़रों से ओझल थे और जिनका आज तक किसी अदीब या शायर ने तो क्या हिंदी अदीबों और शायरों ने भी इस्तेमाल नहीं किया था। लफ्ज़ का सही और बरमहल इस्तेमाल जिससे कलाम में जान पड़ जाए और लफ्ज़ खुद बोल उठे कि लिखने वाले के दिल में क्या चीज़ खटक रही है, अदीब का बड़ा कमाल है और ये कोई हाली से सीखे। दिलों में घर कर लेने के जो गुर अदब में हैं उनमें से एक ये भी हैं। नामो नमूद छू कर नहीं गया था, वरना शहरत वो बदबला है कि जहाँ ये आती है कुछ न कुछ शेखी आ ही जाती है। हमारे शायरों में तो तरली ऐब ही नहीं रही बल्कि शेवा हो गई है। वो सीधी सादी बातें करते थे और जैसा कि आम तौर पर दस्तूर है बातों बातों में शेर पढ़ना, बहस करके अपनी फजीलत जताना और इशारे किनारे में दूसरों की तहकीर और दरपर्दा अपनी बड़ाई दिखाना इनमें बिल्कुल ना था। हाँ, शेर में अलबत्ता कहीं कहीं तौली आ गई है, मगर वो भी ऐसे लतीफ़ पैराए में कि खाकसार का पहलू वहाँ भी हाथ से जाने नहीं पाया। मसलन गर्चा हाली अगले उस्तादों के आगे हीच है, काश होते मुल्क में ऐसे ही अब दो चार हीच। माल है नायाब पर गाहक हैं इससे बेखबर, शहर में खोली है हाली ने दुकान सबसे अलग। इनका ज़ौक़ शेर आला दर्जे का था, जैसा कि हयात सादी, यादगार गालिब और मुकदमा शेर व शायरी से ज़ाहिर है, लेकिन खामखा इसकी नुमाइश नहीं करना चाहते थे। हाँ, जब कोई पूछता या इत्तफाक से बात आ पड़ती तो वो खुलकर इसके निकात बयान करते थे। हमारे यहाँ ये दस्तूर सा हो गया है कि जब कभी कोई किसी शायर से मिलता है तो इससे अपना कलाम सुनाने की फरमाइश करता है। शायर तो शायर से इसलिए फरमाइश करता है कि इसे भी अपना कलाम सुनाने का शौक़ गुदगुदाता है और जानता है कि इसके बाद मुखातिब भी इससे यही फरमाइश करेगा और बाज़ औक़ात तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बग़ैर फरमाइशी के अपना कलाम से महसूस फरमाने लगते हैं।
दूसरे लोग इसलिए फरमाइश करते हैं कि शायर इनसे इसकी तवक्का रखता है। बाज़ शायर तो बाज़ शायर तो इसके लिए ही बेचैन रहते हैं, लेकिन बाज़ लोग सच्चे दिल से इस बात की आरजूमंद होते हैं कि किसी शायर का कलाम इसकी ज़बान से सुने। लोग मौलाना हाली से भी फरमाइश करते थे, वो किसी न किसी तरह टाल जाते थे और अक्सर ये उज़र कर देते थे कि मेरा हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है, अपना लिखा भी याद नहीं रहता। ये महज उज़र लिंग ही ना था, इसमें कुछ हकीकत भी थी। लेकिन असल बात यह थी कि वो खुदनुमाई से बहुत बचते थे। जिन दिनों मौलाना हाली का क़याम हैदराबाद में था, एक दिन ग्रामी मरहूम ने चाय की दावत की, चंद और अहबाब को बुलाया। चाय वगैरह के बाद जैसा कि मालूम है, फरमाइश हुई कि कुछ अपना कलाम सुनाए। मौलाना ने वही हाफजा का उज़र किया। हर चंद लोगों ने कहा कि जो कुछ भी याद हो वो फरमाइए, मगर मौलाना उज़र ही करते रहे। इतने में एक साहब को खूब सूझी। वो चुपके से उठे और कहीं से दीवाने हाली ले आए और अल्लाह के सामने रख दिया। अब मजबूर हुए कि कोई उज़र नहीं चल सकता। आखिर उन्होंने ये गज़ल सुनाई जिसका मतलब था, है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। आजकल तो हमारे अक्सर शायर लय से या ख़ास तौर से गा के पढ़ते हैं, इनका जिक्र नहीं, लेकिन जो तहतुल लफ्ज़ पढ़ते हैं इनमें बाज़ तरह तरह के चश्म, आबरू, हाथ, गर्दन और जिस्म से काम लेते हैं और बाज़ औक़ात ऐसी सूरतें बनाते हैं कि बेख्तियार हंसी आ जाती है। मौलाना सीधे साधे तौर से पढ़ते थे, अलबत्ता मौका के लिहाज से इस तरह अदा करते हैं कि इससे असर पैदा होता था। एक बार अलीगढ़ कॉलेज मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना जलसा था। मौलाना का मिजाज कुछ अलील था। उन्होंने अपनी नज़म पढ़ने के लिए मौलवी वहीदुद्दीन सलीम साहब को दी, जो बहुत बुलंद आवाज़ मुकर्रिर पढ़ने में कमाल रखते थे। सलीम साहब एक ही बंद पढ़ने पाए थे कि मौलाना से रहा ना गया। नज़म उनके हाथ से ले ली और ख़ुद पढ़नी शुरू की। ज़रा सी देर में सारी मजलिस में कोहराम मच गया। सर सैयद तो इस ज़माने में खैर मुर्दलान व तान थे ही, और हर किसो नाकिस इन पर मुंह आता था। लेकिन इसके बाद जिस पर सबसे ज़्यादा एतराज़ात की बौछार पड़ी वो हाली थे। एक तो हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ सैयद अहमद ख़ां से था यही मरदूद समझा जाता था। इस पर इनकी शायरी जो आम रंग से जुदा थी और निशाना मलामत बन गई थी, और मुकदमा शेर व शायरी ने तो खासी आग लगा दी थी। अहले लखनऊ इस मामले में छुई मुई से कम नहीं। वो मामूली सी तनकीद के भी रवादार नहीं होते। उन्हें ये वहम हो गया था कि ये सारी कार्रवाई उन्हीं के मुखालफत में की गई है। फिर क्या था, हर तरफ से नुक्ता चीनी और तानो तारीज़ की सदा आने लगी। अवध पंच में एक तवील सिलसिला मज़ामीन मुकदमा के ख़िलाफ़ मुद्दत तक निकलता रहा, जो अदबी तनकीद का अजीब व गरीब नमूना था। वो सिर्फ बेतुके और महमल इतराज़ात ही का मजमुआ ना था, बल्कि फक्कड़ और फप्तियों तक नौबत पहुंच गई थी, जिन मज़ामीन के उन्वान अबतर हमारे हमलों से हाली का हाल है, मैदान पानी पत की तरह पायमाल है। तो इससे समझ लीजिए कि इस अनवान के तहत कुछ खराफात ना बकी गई होगी। मौलाना ये सब कुछ सहते रहे, लेकिन कभी एक लफ्ज़ ज़बान से ना निकाला। क्या पूछते हो क्यों कर सब नुक्ता ची हुए चुप, सब कुछ कहा उन्होंने पर हमने दम ना मारा। लेकिन आखिर एक वक्त आया कि नुक्ता चीनों की ज़बान बंद हो गई और वही लोग जो उन्हें शायर तक नहीं समझते थे इनकी तकलीद करने लगे। गुल तो बहुत यारों ने मचाया पर गए अक्सर मान हमें। मुखालफत सहने का इनमें अजीब व गरीब मादा था। कैसा ही इख्तलाफ हो वो सब्र के साथ रहते थे, जवाब देते थे, लेकिन हुज्जत नहीं करते थे। बाज़ औक़ात नामाकूल बात और कट हुज्जती पर गुस्सा आता था, लेकिन ज़ब्त से काम लेते थे। ज़ब्त और इतदाल इनके बहुत बड़े औसाफ थे, और ये दो खूबियाँ इनके कलाम में भी कामिल तौर पर पाई जाती हैं। ये अदीब का बड़ा कमाल है। ये बात सिर्फ असातिज़ा के कलाम में पाई जाती है, वरना जोश में आकर आदमी सरे रिश्ता
اعتدال کھو بیٹھتا ہے اور بہک کر کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے اور بجائے کچھ کہنے کے چیخنے چلانے لگتا ہے۔ ان کا ایک نواسا تھا، ماں اس کی بیوہ تھی اور اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اکلوتا لڑکا بڑا لاڈلا ہوتا ہے۔ اس پر ایک آفت یہ تھی کہ مرا کی بیماری میں مبتلا تھا، اس لیے ہر طرح اس کی خاطر اور رضا جوئی منظور تھی۔ وہ مولانا کو بہت دق کرتا مگر وہ اف تک نہ کرتے۔ وہ اینڈے بینڈے سوالات کرتا، یہ بڑے تحمل سے جواب دیتے۔ وہ فضول فرمائشیں کرتا، یہ اس کی تعمیل کرتے۔ وہ خفا ہوتا اور بگڑتا، یہ اس کی دلجوئی کرتے۔ وہ روٹھ جاتا، یہ اسے مناتے۔ وہ لڑ کر گھر سے بھاگ جاتا، یہ اسے ڈھونڈتے پھرتے۔ پانی پت سے کہیں باہر جاتے تو وہ انہیں دھمکی آمیز خط لکھتا، یہ شفقت آمیز خط لکھتے اور سمجھاتے بجھاتے۔ کچھ اس کی دکھیا ماں کا پاس وہ سب سے زیادہ اس پر شفقت فرماتے اور اس کی ہٹ خفگی روٹھنے مچلنے کو سہتے اور کبھی آزردگی یا بیزاری کا اظہار نہ کرتے۔ اگرچہ جوان ہو گیا تھا مگر مزاج اس کا بچوں کا تھا۔ سلیم مرحوم فرماتے تھے کہ ایک بار اس نے مولانا کو ایسا دھمکایا کہ وہ گر پڑے۔ کہیں خواجہ سجاد حسین صاحب نے دیکھ لیا، وہ بہت برہم ہوئے اور شاید اس کے ایک تھپڑ مار دیا۔ مولوی صاحب اس پر سخت ناراض ہوئے اور خواجہ صاحب سے بات چیت موقوف کر دی اور جب تک انہوں نے اس لڑکے سے معافی نہیں مانگ لی ان سے صاف نہ ہوئے۔ مولانا نے دنیاوی جاہ و مال کی کبھی ہوس نہیں کی، جس حالت پر تھے اس پر قانع تھے اور خوشی خوشی زندگی بسر کرتے اور اس میں اوروں کی بھی مدد کرتے رہتے تھے۔ ان کی قناعت کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ انہیں عربک اسکول میں 60 روپیہ ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ جب حیدرآباد میں ان کے وظیفے کی کارروائی ہوئی تو انہوں نے 60 سے زیادہ طلب نہ کیے، جس کے نتیجتاً 75 حالی ہوئے۔ ایک مدت تک 75 ہی ملتے رہے، بعد میں 25 کا اضافہ ہوا۔ ریاست حیدرآباد سے معمولی آدمیوں کی بیش قرار وظیفے ملتے تھے، وہ چاہتے تو کچھ مشکل نہ تھا مگر انہوں نے کبھی زیادہ کی ہوس نہ کی اور جو ملتا تھا وہ اس کے لیے بہت شکر گزار تھے۔ غالباً سوائے ایک آدھ کے انہوں نے کبھی اپنی کسی کتاب کی رجسٹری نہ کرائی، جس نے چاہا چھاپ لی۔ ان کی تصانیف مال یغما تھی، مسدس تو اتنا چھپا کہ شاید ہی کوئی کتاب چھپی ہو۔ یہ کیسی سیر چشمی اور عالی ظرف کی بات ہے، خصوصاً ایسے شخص کے لیے جس کی آمدنی محدود اور بڑھتی ہوئی ضرورتوں سے کم ہو۔ مروت کے پتلے تھے، جب تک خاص مجبوری نہ ہو کسی کی درخواست رد نہیں کرتے تھے۔ وقت بے وقت لوگ آ جاتے اور فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے، وہ بیٹھے سنا کرتے لیکن محض دل آزاری کے خیال سے یہ نہ ہوتا کہ خود اٹھ کر چلے جاتے یا کنایتاً اشارتاً کوئی ایسی بات کہتے کہ لوگ اڑ جاتے۔ حیدرآباد کے قیام میں نے اس کا خوب تماشا دیکھا۔ اس طرح طبیعت میں حیا بھی تھی۔ جس سال حیدرآباد تشریف لائے سر سید کی برسی کا جلسہ بھی انہی کی موجودگی میں ہوا۔ ان سے خاص طور سے درخواست کی گئی کہ اس جلسے کے لیے سر سید کی زندگی پر کوئی مضمون پڑھیں۔ نواب عماد الملک بہادر صدر تھے۔ مولانا نے اس موقع کے لیے بہت اچھا مضمون لکھا تھا۔ مضمون ذرا طویل تھے، پڑھتے پڑھتے شام ہو گئی، اس لیے آخری حصہ چھوڑ دیا۔ قیام گاہ پر واپس آ کر فرمانے لگے، میرا گلا بالکل خشک ہو گیا تھا اور حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ اچھا ہوا جو اندھیرا ہو گیا ورنہ اس سے آگے ایک حرف نہ پڑھا جاتا۔ دوستو میرا بھی یہی حال ہے، میں اتنے دیر سے پڑھ رہی ہوں اور میرا گلا خشک ہو گیا ہے اور اب آگے پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، لیکن میں اسے آپ کو پورا پڑھ کر ضرور سناؤں گی۔ میں نے کہا وہاں پانی شربت وغیرہ کا سب انتظام تھا، آپ نے کیوں نہ فرمایا اسی وقت پانی یا شربت حاضر کر دیا جاتا۔ کہنے لگے، اتنے بڑے مجمع میں پانی مانگتے ہوئے شرم معلوم ہوئی۔ جب کسی ہونہار تعلیم یافتہ نوجوان کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتے اور حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ قدردانی کا یہ حال تھا کہ جہاں کوئی اچھی تحریر نظر سے گزرتی تو اس کو فوراً داد دیتے اور خط لکھ کر لکھنے والے کی ہمت بڑھاتے تھے۔ پیسہ اخبار جب روزانہ ہوا تو سب سے پہلے مولانا نے مبارکباد کا تار دیا۔ مولوی ظفر علی خان کی کارگزاریوں سے خوش ہو کر ان کی تعریف میں نظم لکھی، ہمدرد اور مولانا محمد علی کی مدح سرائی کی، اور جب کبھی کوئی ایسی بات دیکھتے تو قابل اعتراض ہوتی
तो बड़ी हमदर्दी और शफकत से समझाते और इसका दूसरा पहलू समझाते। इनके ख़तों में ऐसे बहुत से इशारे पाए जाते हैं। इनके बाद हम अक्सर इस बात से नाराज़ होते थे कि मौलाना दाद देने और तारीफ़ करने में बड़ी फयाजी बरतते हैं, जिससे लोगों का दिमाग फिर जाता है। मुमकिन है ये सही हो, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है। इनकी ज़रा सी दाद से कितना दिल बढ़ जाता था और आइंदा काम करने का हौसला होता था। हम असरों और हम चश्मों की रकाबत पुरानी चीज़ है और हमेशा से चली आ रही है। जहाँ तक मुझे इनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला और बाज़ वक्त छेड़ छेड़ कर और कुरेद कुरेद कर देखा और इनकी तहरीरों के पढ़ने का इत्तफाक हुआ, मौलाना इस ऐब से बरी मालूम होते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद मौलाना शिबली की किताबों पर कैसे अच्छे तबसरे लिखे हैं और जो बातें काबिल तारीफ़ हैं, इनकी दिल खोलकर दाद दी है। मगर इन बुज़ुर्गों में से किसी ने मौलाना की किसी किताब का मुतालिक कुछ नहीं लिखा। आज़ाद मरहूम इनका नाम तक सुनने के रवादार ना थे। इस मामले में इनकी तबीयत का रंग बहीना ऐसा था जैसे किसी सौत का होता है। लाहौर में कर्नल हॉलराइट की ज़ेर हिदायत जो जदीद रंग के मुशायरे हुए, उनमें दोनों ने तबाह आजमाई की। बरखा रुत, हुब्बे वतन, निशात उम्मीद उसी ज़माने की नज़में हैं। मौलाना की इन नज़मों की जो तारीफ़ हुई तो ये अमर हज़रत आज़ाद की तबाह नाजुक पर गुज़रा। इस वक्त से उनका रुख ऐसा फिरा कि आखिर दम तक ये फांस ना निकली। आज़ाद अपने रंग के बेमिसाल निसार हैं, मगर शेर के कूचा में इनका कदम नहीं उठता। लेकिन मौलाना के इंसाफ पसंदी मुलाहजा कीजिए, कैसे साफ लफ्ज़ों में इस नई तहरीर का सेहरा आज़ाद के सर बांधते हैं। 1874 ईस्वी में जबकि राकिम पंजाब गवर्नमेंट बुक डिपो से मुतालिक और लाहौर में मुकीम था, मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तहरीर और कर्नल हॉलराइट डायरेक्टर सरे रिश्ता तालीम पंजाब की तायद अंजुमन पंजाब ने एक मुशायरा काम किया, जो हर महीने एक बार अंजुमन मकान में मुनाकिद होता था। बात में बात निकल आती है, जब हयात जावेद शाये हुई तो मौलाना ने 3 नुस्खे मुझे भेजे थे। एक मेरे लिए, एक मौलवी अजीज़ मिर्ज़ा के लिए और तीसरा एक मोहतरम बुज़ुर्ग और अदीब जो इस वक्त इत्तफाक से हैदराबाद में वारिद थे। मैंने ले जाकर ये किताब उनकी खिदमत में पेश की। शुक्र तो ये रहा कि इस तरफ देखते ही फरमाया, ये कज़ब व अफ्तरा का आईना है। वहाँ और भी कई साहब मौजूद थे। मैं ये सुनकर दम खुद रह गया। यूँ भी कुछ कहना सो अदब था, लेकिन जहाँ पढ़ने से पहले ऐसी राय का इजहार कर दिया हो, वहाँ ज़बान से कुछ निकालना बेकार था। अब इस मुकाबले में एक वाक़या सुनिए। क़याम हैदराबाद में एक रोज़ मौलवी ज़फ़र अली ख़ां मौलाना से मिलने आए। इस ज़माने में वो दक्कन रिव्यू निकालते थे। कुछ अरसे पहले इस रिसाले में 1-2 मज़मून मौलाना शिबली की किसी किताब या रिसाले पर शाये हुए थे। इनमें किस कदर बेजा शोखी से काम लिया गया था। मौलाना ने इसके मुतालिक ज़फ़र अली ख़ां से ऐसे शफ़क़त आमेज़ पैराए में नसीहत करनी शुरू की कि इनसे कोई जवाब ना बन पड़ा और सर झुकाए, आंखें नीची किए, चुपचाप सुना के मौलाना ने ये फरमाया कि मैं तनकीद से मना नहीं करता। तनकीद बहुत अच्छी चीज़ है और अगर आप लोग तनकीद ना करेंगे तो हमारी इसलाह क्यों कर होगी। लेकिन तनकीद में ज़ातियात से बहस करना या हंसी उड़ाना मुनसब तनकीद के ख़िलाफ़ है। ख़ुद मौलाना पर बहुत सी तनकीदें लिखी गईं और नुक्ता चीनियाँ की गईं, लेकिन उन्होंने कभी इसका बुरा ना माना। मौलाना हसरत मोहानी का वाक़या जो मुझसे मौलवी सलीम मरहूम ने बयान फरमाया और अब शेख इस्माइल साहब ने अपने मजमून में लिखा है, बहुत ही पुरलुत्फ़ है। 1903 हिजरी में जब मौलवी फजल हसन साहब हसरत मोहानी ने अलीगढ़ से उर्दू मोहल्ला जारी किया तो जदीद शायरी के इस मुजद्दिद आज़म पर भी इतराज़ात का एक ला मतना ही सिलसिला शुरू किया। मौलाना के पास अगरचा उर्दू मोहल्ला बाकायदा पहुँचता था, मगर ना आपने कभी इतराज़ात का जवाब दिया और न मुखालफत पर नाराज़गी का इजहार फरमाया। अलीगढ़ कॉलेज में कोई अजीमुशान तकरीब थी। नवाब मोहसिन मुल्क मरहूम के इसरार पर मौलाना हाली भी इसमें शिरकत की गर्ज से तशरीफ़ लाए और हस्ब मामूल सैयद ज़ैनुल आबदीन मरहूम के मकान पर फरोकश हुए।
एक सुबह हसरत मोहानी दोस्तों को साथ लिए हुए मौलाना की खिदमत में हाजिर हुए। चंद इधर उधर की बातें हुआ की इतने में सैयद साहब मौसूफ ने भी अपने कमरे से हसरत को देखा। इन मरहूम में लड़कपन की शोखी अब तक बाकी थी। अपने कुतुब खाने में गए और उर्दू मोहल्ला के दो तीन पर्चे उठा लाए। हसरत और उनके दोस्तों का माथा ठनका। अब खैर नहीं और उठकर जाने पर आमादा हुए, मगर जैनुल आबदीन कब जाने देते थे। खुद पास बैठ गए, एक पर्चा के वरक उलटना शुरू किया और मौलाना हाली को मुखातिब करके हसरत और उर्दू मोहल्ला की तारीफों के पुल बांध दिए। किसी मजमून की दो चार सतरे पढ़ते और वाह खूब लिखा कहकर दाद देते थे। हाल में हूँ हाँ से तायद करते जाते थे, मगर हसरत के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। इतने में सैयद साहब मसनूई हैरत बल्कि वहशत का इजहार करके बोले, अय मौलाना, ये देखिए आपकी निस्बत क्या लिखा है, और कुछ इस किस्म के अल्फाज शुरू किए। सच तो यह है कि हाली से बढ़कर मुखर्रिब जबान कोई हो ही नहीं सकता, और वो जितनी जल्द अपनी कलम को उर्दू की खिदमत से रोकें इतना ही अच्छा है। फरिश्ता मुंश हाली ज़रा मुकद्दर नहीं हुए और मुस्कुरा कर कहा, तो ये कहा कि नुक्ता चीनी इस्लाह ज़बान का एक बेहतरीन ज़रिया है और ये ऐब में दाखिल नहीं। कई रोज़ बाद एक दोस्त ने हसरत से पूछा कि हाली के ख़िलाफ़ आप भी कुछ लिखोगे। जवाब दिया, जो कुछ लिख चुका हूँ इसी का मलाल अब तक दिल पर है। रिसाला ज़माना माह दिसंबर 1908, जिल्द 11 नंबर 6 सफ़ा 298 था 299। माखुज अज तस्करा हाली सफ़ाए 195 या 198। मौलाना हाली अंग्रेज़ी मुतल्लिक़ नहीं जानते थे। एक आध बार सीखने का इरादा किया, ना हो सका। लेकिन हैरत यह है कि मगरबी तालीम और तहजीब के मंशा को जैसा वो समझते थे, इस वक्त बहुत से अंग्रेज़ तालीम याफ्ता भी नहीं समझते थे। इनका कलाम और इनके तसानीफ इनकी शाहिद हैं, और जो ये समझते थे कि वो करके दिखाया। और आज सैकड़ों तालीम याफ्ता मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कितने हैं जिन्होंने इसका अश्र अशीर भी किया हो। फिर यही नहीं कि हमारे शायरों और मुसन्निफ़ों की तरह बिल्कुल ख्याली शख्स थे, बल्कि जो कहते और समझते थे इस पर आमिल भी थे। आदमी मुफक्किर भी हो और अमली भी, ऐसा शाज होता है। ताहम मौलाना ने अपनी बसात के मुवाफिक अमली मैदान में भी अपनी यादगारें छोड़ दी हैं। एक तो उन्होंने अपने वतन पानीपत में मदरसा कायम किया, जो अब हाली मुस्लिम हाई स्कूल के नाम से मौसूम है, और एक पब्लिक ओरिएंटेड लाइब्रेरी काम की जो पानीपत में सबसे बुलंद और पुरफिजा मुकाम पर वाक़ है। इसमें किताबों का एक अच्छा खासा ज़ख़ीरा है जिससे पानीपत वाले मुस्तफ़ीद होते हैं। मौलाना कमज़ोरों और बेकसों के बड़े हामी थे, ख़ासकर औरतों की, जो हमारे यहाँ सबसे बेकस फ़रक़ा है। उन्होंने हमेशा हिमायत की। मुनाजात बेवा और चुप की दाद, ये दो ऐसी नज़में हैं जिनकी नज़ीर हमारी ज़बान में क्या हिंदुस्तान की किसी ज़बान में नहीं है। इन नज़मों के एक एक मिसरा से खुलूस, जोश, हमदर्दी और असर टपकता है। ये नज़में नहीं, दिल और जिगर टुकड़े हैं। लिखना तो बड़ी बात है, कोई इन्हें बेचश्म नम पढ़ भी नहीं सकता। जिन लोगों ने सिर्फ इनका कलाम पढ़ा है, शायद वो समझते होंगे कि मौलाना हर वक्त रोते और बसोरते रहते होंगे। इसमें शक नहीं कि इनका दिल दर्द से लबरेज था और ज़रा से ठेस से छलक उठता था, मगर वो बड़े शगुफ्ता मिजाज और खुश तबा थे। खुसूसन अपने हम सोहबत यारों में बड़ी ज़राफ़त और शोख़ी से बातें करते थे। इनके कलाम में भी कहीं कहीं ज़राफ़त और ज़्यादातर तंज़ की झलक नज़र आती है। जदीद तालीम के बड़े हामी थे और इसके इशाअत और तलक़ीन में मकदूर भर कोशिश करते रहे, लेकिन आखिर उम्र में हमारे कॉलेजों के तलबा को देखकर इन्हें किसी कदर मायूसी होने लगी थी। मुझे खूब याद है कि जब उनके नाम हैदराबाद में एक रोज़ ओल्ड बॉय आया तो उससे पढ़कर बहुत अफसोस करने लगे कि इसमें सिवाय मस्खरापन के कुछ भी नहीं होता। उन्हें अलीगढ़ के तलबा से इससे आला तवक्का थी। इनकी बड़ी इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उर्दू ज़बान में आला दर्जे की नावल खुसूसन ड्रामे लिखे जाएं, और इस बात पर अफसोस करते थे कि यूरोपियन ज़बानों से बेहतरीन नावलों और ड्रामों का उर्दू में तर्जुमा नहीं किया गया ताकि वो नमूने काम दें। ये गुफ्तगू उन्होंने कुछ इस ढंग से की जिससे मुतशह होता था कि इनका जी चाहता था
कि खुद कोई ड्रामा लिखें लेकिन स्टेज से वाकिफ़ ना होने और कोई उम्दा नमूना सामने ना होने से मजबूर हैं। आखिर में इनकी दो बड़ी तमन्नाएं थीं। एक तो उर्दू ज़बान में तज़कीर व तानीस के उसूल मुनज़्ज़बत करना, और एक कोई और बात थी जो इस वक्त मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई है। जब मेरा तकर्रुर औरंगाबाद पर हुआ था तो मैंने मौलाना की खिदमत में लिखा कि यहाँ की हवा बहुत मतदिल और खुशगवार है, पानी बहुत लतीफ़ है, और खुसूसन जिस मुकाम पर मैं रहता हूँ वो बहुत ही पुरफिज़ा है। आप कुछ दिनों के लिए यहाँ तशरीफ़ ले आइए, सेहत को भी फ़ायदा होगा और जो काम आप करना चाहते हैं वो भी आसानी से अंजाम पाएगा। कोई मुखले औकात भी ना होगा, और यकीन है कि आप यहाँ आकर बहुत खुश होंगे। वो आने के लिए बिल्कुल आमादा थे, मगर इनके फर्जिंद ख्वाजा सज्जाद हुसैन साहब और दूसरे अजीज़ व क़ारिब रजामंद ना थे। उज़र ये था कि दूर दराज का सफ़र है, ज़ईफ़ी का आलम है, तबीयत वो भी नासाज रहती है। ऐसी हालत में इतनी दूर का सफ़र खिलाफ मसलहत है। मौलाना ने ये सब कैफियत मुझे लिख कर भेजी, और साथ ही ये भी लिख दिया कि जब तुम इधर आओ तो 2-1 रोज़ के लिए पानीपत भी चले आना। इस वक्त मैं तुम्हारे साथ खोलूँगा, फिर कोई चूँ व चरा नहीं करेगा। जब मैं गया तो वो बीमार हो चुके थे और बीमारी ने इतना तवील खींचा कि जान लेकर गई। मरहूम हमारी कदीम तहजीब का बेमिसाल नमूना थे। शराफत और नेक नफ्सी इन पर ख़त्म थी। चेहरे से शराफत, हमदर्दी, शफ़क़त टपकती थी। दिल को इनकी तरफ कशिश होती थी। इनके पास बैठने से ये मालूम होता था कि कोई चीज़ हम पर असर कर रही है। दरगुजर का ये आलम था कि कोई इनसे कैसी बदमुआमलगी और बदसलूकी क्यों ना करे, इनके ताल्लुकात में कभी फ़र्क ना आता। जब मिलते तो इसी शफ़क़त व इनायत से पेश आते, और क्या मजाल कि इसकी बदसलूकी और बदमुआमलगी का ज़िक्र ज़बान पर आने पाए। इससे नहीं किसी दूसरे से भी कभी ज़िक्र ना आता। इससे बढ़कर क्या तालीम होगी। ऐसे लोग जिनसे हर शख्स उज़र करता, और जब इनसे मिलते तो उनके हुस्न सलूक और मोहब्बत का कलमा पढ़ते हुए जाते थे। परले दर्जे के नुक्ताचीन जो दूसरों की ऐबगिरी के बगैर मानते ही नहीं, इनके डंक यहाँ आकर गिर जाते थे। अखलाक अगर सीखने की चीज़ है तो ऐसे ही पाक नफ्स बुज़ुर्गों की सोहबत में आ सकते हैं, वरना यूं दुनिया में पंदो नसाहे की कोई कमी नहीं। दफ्तर के दफ्तर भरे पड़े हैं, कैसा ही बुरा ज़माना क्यों ना हो, दुनिया कभी अच्छों से खाली नहीं होती। अब भी बहुत से साहिब इल्म व फजल बाकमाल, जी वजाहत, नेक सीरत और नेक दिल लोग मौजूद हैं, मगर अफसोस कि कोई हाली नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये बहुत ज़बरदस्त है, हाल ही की पूरी ज़िंदगी की कहानी है। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, तो इसे पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और स्किप किए बगैर देखें, और इसमें एक से एक वाक़या और दिलचस्प कहानी इसमें लिखी गई है, तो इसे पूरा पढ़ें और स्किप किए बगैर पढ़ें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे एक बार फिर गुजारिश करूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।